کراچی میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے ایم کیو ایم کے 3 ہمدردوں کو سپرد خاک کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واردات میں ملوث ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ ایم کیو ایم کے 3 ہمدردوں توصیف، فرحان اور مہتاب کی نماز جنازہ ملیر کھوکرپار میں ان کی رہائش گاہوں کے قریب ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں رابطہ کمیٹی کے اراکین ڈاکٹر صغیر احمد، اشفاق منگی، نثار پنور، علاقے کے منتخب اراکین، ایم کیو ایم کے کارکنان اور مقتولین کے عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مقتولین کو قریب ہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ مخالفین ایم کیو ایم کی مقبولیت سے خائف ہیں اور جرائم پیشہ افراد کو ایم کیو ایم کے کارکنوں کے اغوا اور قتل کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کے دعوے داروں سے یہ کہتا ہوں، میں اس وقت پاکستان کے تمام ارباب اختیار سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہمارے کارکنان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ دوسری جانب ملیر پولیس نے اغوا اور قتل میں ملوث ملزم رحمت علی خاصخیلی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقتولین اور ملزم دونوں ایک ہی فیکٹری کے ملازمین ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس نے گزشتہ رات فیکٹری کے سپروائزر عاشق سومرو کو حراست میں لیا تھا، جس نے انکشاف کیا کہ مقتولین کا 2 روز قبل رحمت علی سے جھگڑا ہوا تھا اور آج وہ فیکٹری بھی نہیں آیا۔ پولیس نے آج صبح سالار گوٹ میں چھاپہ مار کر رحمت علی خاصخیلی کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ہمدردوں کو ملیر کے قبرستان میں خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر صغیر احمد نے ایک بار پھر صوبائی حکومت سے دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عاصم خان کی رپورٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ہمدردوں کی نماز جنازہ ملیر کے ذکریہ چوک پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کے کارکنوں اور رابطہ کمیٹی کے اراکین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جوانوں کے لاشیں اٹھے تو سبھی غمگین نظر آئے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر صغیر نے کہا کہ دہشت گرد سرکاری سرپرستی میں بے گناہ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، تجارتی سرگرمیوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی سماجی ایکٹیویٹیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ بطہ خوروں نے یہاں رہنے والوں پہ، یہاں کے کاروباری حضرات پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے ایکشن لیا جائے، خدا کے واسطے کل جو ہمارے 4 کارکنان شہید ہو گئے، خدا کے واسطے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تینوں مقتولین کو ملیر کے مقامی قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسری جانب پولیس نے ملیر سے ایک ملزم رحمت خاصخیلی کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ روز ملیر میں اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیے گئے متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ہمدردوں کی نماز جنازہ ملیر میں ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی تدفین آہوں اور سسکیوں میں کر دی گئی۔ پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ کیمرہ مین فہیم رضا کے ساتھ عاصم خان، ڈان نیوز، کراچی۔ اور اب بات شہر قائد کی، جہاں آج سوگ رہا۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ہمدردوں کو ملیر کے قبرستان میں خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر صغیر احمد نے ایک بار پھر صوبائی حکومت سے دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کی رپورٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ہمدردوں کی نماز جنازہ ملیر کے ذکریہ چوک پہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور رابطہ کمیٹی کے اراکین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تینوں مقتولین کو ملیر کے مقامی قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ مقتولین کے تدفین کے بعد ایم کیو ایم نے یوم سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا تو شہر میں رونقیں بحال ہو گئیں۔ دن بھر بند رہنے والی دکانیں اور چھوٹی مارکیٹیں کھل گئیں۔ پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشن پہ لگی رکاوٹیں بھی ہٹائی گئیں اور پبلک ٹرانسپورٹر بھی رواں دواں نظر آئی۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی اپیل پہ سندھ بھر میں یوم سوگ رہا۔ کراچی میں چھوٹے بڑے تمام کاروباری اور تجارتی مراکز بند رہے، سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب اور تمام تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔
कराची समेत हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, जैकबाबाद, मुल्तान, पिशावर और मुजफ्फराबाद में भी मुश्तैल अफराद ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और रैलियां निकाली, जबकि जामशोरो और मीरपुर खास में भी कारोबारी जिंदगी बंद रहा। MQM राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स गैंग वॉर के दहशतगर्दों की पुष्पनाई का इल्जाम आयद किया। इनका कहना था कि शहर के अवाम को अगर दहशतगर्दों से न बचाया गया तो फिर शहरी अपनी हिफाजत खुद करेंगे। शहर को इस तरह दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ा गया तो सिर्फ कराची नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। मैं इसलिए बड़ी दर्दमंदाना अपील करता हूं नई मुंतखब हुकूमत से कि फौरी तौर पर कराची में जिस तरह मुनज़्ज़म तौर पे दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है उस सरपरस्ती को खत्म करके उनकी सरकोबी की जाए। इससे कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने यौम सोग के दौरान तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रखने पे ताजिरों, ट्रांसपोर्टर्स और अवाम को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आसिम खान के साथ इमरान खान, डॉन न्यूज, कराची। और अब बात करते हैं कराची की सूरत हाल पर, जहां MQM के यौम सोग खत्म करने पर कराची में जिंदगी मामूल पर लौट आई। मुत्तहदा के 3 हमदर्दों की तदफीन कर दी गई। देखते हैं नासिर भट्ट की रिपोर्ट। MQM के हमदर्दों मेहताब, फरहान फैजान और तौसीफ की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। तीनों को गुज़िश्ता रोज मलीर में बस से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। नमाज जनाजा में MQM के रहनुमाओं अशफाक मंगी, डॉक्टर सगीर अहमद, निसार पंवर, अरकान असम्बली, कारकुनों और मकतूलीन के लवाहिकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रिकत आमेज मनाजिर देखने में आए। बाद में तीनों को आहों और सिस्कियों में खोखरा पार के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मैं इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अरबाब इख्तियार से ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते हमारे कारकुनान के बारे में हमें बताया जाए कि हमारे कारकुनान के साथ क्या किया गया है। वो जिंदा है या मुर्दा है, वो मार दिए गए, कहीं दफना दिए गए, वो किधर है, खुदा के वास्ते उनके बारे में बताया जाए। नमाज जनाजा के बाद MQM की तरफ से यौम सोग खत्म करने का ऐलान होते ही कराची में जिंदगी मामूल पर लौट आई। सुबह से बंद पेट्रोल पंप्स खुलना शुरू हुए तो गाड़ियां भी सड़कों पर आ गईं और मार्केटें, दुकानें भी खुल गईं। MQM की तरफ से यौम सोग कामयाब बनाने पर ताजिरों, ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को खराज तहसीन पेश किया गया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इधर गुज़िश्ता रोज मलीर में अगवा के बाद कत्ल होने वाले MQM के कारकुनान और हमदर्दों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। MQM राब्ता कमेटी ने शाम 4 बजे यौम सोग खत्म करने का ऐलान कर दिया था। मलीर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 हमदर्दों की टारगेट किलिंग और अगवा के वाक़े और शहर में बढ़ती हुई भत्ताखोरी की वारदातों के खिलाफ सिंध भर में MQM की जानिब से यौम सोग की अपील पर तमाम सनती और तिजारती तंजीमों, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, CNG और पेट्रोल पंप एसोसिएशन समेत तमाम छोटी और बड़ी मार्केट तंजीमों ने हिमायत का ऐलान करते हुए आज सरगर्मियां मुअत्तल रखने का फैसला किया, जिसके बाद शहर में सन्नाटा छाया रहा। जबकि कराची में होने वाले इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए, जबकि निजी स्कूल भी बंद रहे। गुज़िश्ता रोज मलीर में अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले MQM के कारकुनान और हमदर्दों की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें MQM के रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब बात करते हैं मलीर खोखरा पार में गुज़िश्ता रोज अगवा के बाद कत्ल होने वाले MQM के 3 हमदर्दों की। फरहान, मेहताब और तौसीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा है कि उनके दीगर लापता कारकुनों के बारे में बताया जाए कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। जिंदा है या मुर्दा है, वो मार दिए गए, कहीं दफना दिए गए, वो किधर है, खुदा के वास्ते उनके बारे में बताया जाए। खुदा के वास्ते हमें वो जवाब दिया जाए जो हम उनकी फैमिली को दे सके। खोखरा पार में MQM के हमदर्दों फरहान, मेहताब और तौसीफ की नमाज जनाजा खोखरा पार नंबर 5 मेन रोड पर अदा की गई, जिसमें राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर सगीर अहमद, रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद, रुकन सूबाई असेंबली अशफाक मंगी, नदीम राजी समेत MQM के कारकुनों, मकतूलीन के अहले खाना समेत अहले मोहल्ला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि MQM के कारकुनों को कत्ल और लापता किया जा रहा है। के वास्ते हमारे कारकुनान के बारे में हमें बताया जाए कि हमारे कारकुनान के साथ क्या किया गया है। वो जिंदा है
या मुर्दा है, वो मार दिए गए, कहीं तफला दिए गए, वो किधर है, खुदा के वास्ते उनके बारे में बताया जाए, खुदा के वास्ते हमें वो जवाब दिया जाए जो हम उनकी फैमिलीज को दे सके। डॉक्टर सगीर का कहना था कि सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ इन वाकयात का नोटिस लें। नमाज जनाजा के बाद तीनों मकतूलीन की तदफीन खोखरापार मासूम शाह कब्रिस्तान में कर दी गई। मर्दों के कत्ल के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपील पर कराची में यौम सोग मनाया गया। शहर में तिजारती मराकज, दुकानें बंद रहीं। शाम 4 बजे MQM की दरखास्त पर मामलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए। दूसरी जानिब मकतूल हमदर्दों को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। जिंदा है या मुर्दा है, वो मार दिए गए, कहीं तफला दिए गए, वो किधर है, खुदा के वास्ते उनके बारे में बताया जाए, खुदा के वास्ते हमें वो जवाब दिया जाए जो हम उनकी फैमिलीज को दे सके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 हमदर्दों के कत्ल के खिलाफ कराची में फिजा सोगवार रही। फरहान मेहताब और तौसीफ की नमाज जनाजा खोखरापार नंबर 5 मेन रोड पर अदा की गई, जिसमें राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर सगीर अहमद, अरकान असम्बली, MQM के रहनुमा और कारकुनान, मकतूलीन के अहले खाना समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि MQM के कारकुनों को कत्ल और लापता किया जा रहा है। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सोग की अपील पर बेशतर इलाकों में तिजारती मराकज, CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप बंद रहे। ट्रैफिक भी मामूल से कम रहा। शाम 4 बजे राब्ता कमेटी ने कारोबार खोलने की अपील की, जिसके बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गए। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने बयान में कहा कि कामयाब यौम सोग अवामी रद्द अमल का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दी और कत्ल गारत गिरी से अवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मोहम्मद सलमान, समा, कराची। बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये भी कहना है कि कराची में अगवा और भत्ताखोरी की वारदातों में फिर तेजी आ गई है। राबिता कमेटी ने नई हुकूमत से शहर में जारी मुनज़्ज़म दहशतगर्दों के खात्मे का मुतालबा किया। MQM के मरकज 90 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राबिता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हमदर्दों के कत्ल के खिलाफ पुरअमन यौम सोग पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि कराची में कत्ल गारत गरी और भत्ताखोरी में तेजी आ गई है। कराची को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ा गया तो पूरा मुल्क परेशान होगा। गुज़िश्ता काफी अरसे से MQM के कारकुनों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही साथ शहर भर में गुज़िश्ता कई दिनों से अगवा, कत्ल और भत्ते की पर्चियों के सिलसिले में एक तेजी नजर आती है।